سب سے پہلے معیشت کی بات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مندی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں ایک موقع پر 1784 پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی۔ نمائندہ جیو نیوز ریاض اینڈی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ریاض، بتائیے گا اس مندی کے رجحان کی کیا وجوہات ہیں اور آج کن سیکٹرز میں زیادہ خرید و فروخت دیکھی گئی ہے؟ موسٹلی تو فروخت ہوئی ہے جو آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے انڈیکس۔ ناؤ دیر آر مینی تھنگس۔ نمبر ون تو یہ کہ بہت انسرٹنٹی ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اور روپیہ جو ہے وہ اس کا ایک پرسوں ہے کہ آپ کو ایک تو اس کے بہت سارے ریٹ مل رہے ہیں اینڈ اٹس اے فری فال۔ تو روپے کو اگر میں آپ کو کہوں تو فرسٹ 100 ہم نے کیا 67 ایئرز میں، سیکنڈ 100 ہم نے کیا 8 ایئرز میں، تھرڈ 100 ہم نے کیا ہے 1 سال 3 مہینے میں، تو چوتھا 100 کیا ہم 6 مہینے میں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے سوالات ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ کہ وہ سینٹیمنٹ ڈرائیو کر رہا ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر روپیہ، اینڈ سیکنڈلی مارکیٹ کے اندر یہ بھی باتیں ہیں کہ شاید انٹرسٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے۔ آج ہمارے 3 سال کا جو بانڈ ہے اس کی ایلڈ میں اضافہ ہوا ہے 50 بیسس پوائنٹ، تو یہ ساری چیزیں اس اسٹریس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ اوور آل یہ ہے کہ ایک جو اعتماد ہوتا ہے، سینٹیمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے، اینڈ دیٹ از ڈرائیونگ مارکیٹ ڈاؤن۔ حالانکہ کل ہم ایم ایس سی آئی کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں جہاں ہمارا بڑا چنک ہوگا، انٹرنیشنل فلوز آنے چاہیے، پھر ہم شہزادہ سعودی عرب سے جو ہے شہزادہ بھی وزٹ پہ آنے والے ہیں، تو موسٹ لائکلی ان سے بھی کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی، تو یہ سیلیبریٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کچھ مومنٹم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے۔ مارکیٹ کے اندر بے یقینی ہے، ابھی غیر یقینی کی صورتحال ہے اور وہ ڈرائیو کر رہی ہے یہ مندی۔ بہت شکریہ ریاض تفصیلات کے لیے۔ اور بجلی کمپنیز کے ملازمین کو بجلی کے فری یونٹس کی فراہمی کا معاملہ ہے۔ وابڈہ اور وزارت آبی وسائل نے فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق فری یونٹس ختم کرنے سے کوئی بچت نہیں ہوگی۔ وزارت آبی وسائل کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ نیپرا نے فری یونٹس کے بجائے یوٹیلیٹی الاؤنس دینے کی تجویز دی ہے۔ وزارت خزانہ کی بجلی کے فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ملازمین کو ماہانہ تنخواہ میں فری یونٹس کے برابر رقم دی جائے، یہ پاور ڈویژن نے تجویز دی ہے۔ پاور ڈویژن نے جو اپنی آبزرویشن دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے، یہ تجویز دی ہے کہ جو رقم دی جانی ہے اس کو ان یونٹس کے برابر کر دیا جائے جو پہلے فری دیے جاتے تھے، اور یہ ساری تجاویز اجلاس میں پیش کی گئی ہیں۔ 1,89,171 ریٹائرڈ حاضر سروس ملازمین کو فری یونٹس دیے جا رہے ہیں، یہ بھی اجلاس میں بتایا گیا۔ ریٹائرڈ حاضر سروس ملازمین کو ماہانہ 3,47,58,825 فری یونٹس دیے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بلز میں اضافے کے خلاف آل پاکستان انجمن تاجران کی ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال پر مختلف شہروں میں کاروباری مراکز بند ہیں۔ تاجر اور دکاندار احتجاج کر رہے ہیں۔ مزید اس کی تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی بجلی کے بلوں میں اضافے پر ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال پر سکھر، میرپور خاص میں تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند ہیں۔ حیدرآباد شہر میں معمول کے مطابق مارکیٹیں اور بازار کھلے ہیں۔ ملتان میں جماعت اسلامی، وکلا اور شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رحیم یار خان میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف انجمن تاجران کی ہڑتال کرنے اور نہ کرنے کے تنازع پر تاجروں کے 2 گروپ جھگڑ پڑے، جس میں 3 دکاندار زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ کئی مقامات پر تاجروں نے احتجاجی ریلیاں بھی نکالی۔ ظفروال میں لاری اڈے پر شہریوں نے احتجاج کیا۔ مظفر گڑھ، وہاڑی میں ہڑتال کے باعث بیشتر کاروباری مراکز بند ہیں۔ بہاولپور، بھاول نگر میں کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر معطل ہیں۔ چشتیہ میں تاجروں اور دکانداروں نے مظاہرہ کیا اور احتجاجاً بجلی کے بلز پھاڑ دیے۔ دیر بالا میں ڈسٹرکٹ بار کے وکلا نے بجلی بلوں اور مہنگائی کے خلاف دیر چوک پر احتجاج کیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد سمیت مظفرآباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔
होटल, दूध, दही, सब्जी, फ्रूट की दुकानों के साथ साथ मेडिकल स्टोर्स तक बंद हैं, जबकि जगह जगह मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने जगह जगह टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी हैं। 8 मुकाम में मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ एहतजाजन शाहराह नीलम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बार कौंसिल की अपील पर वकला ने आज अदालतों का बायकॉट किया। आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए आज आज़ाद कश्मीर में वकला ने एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि बिजली के इजाफी बिल्स पर हुकूमत को फौरी तौर पर एक प्लान बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी अवाम की तकलीफ में उनके साथ है। शेरी रहमान का कहना है कि आज सुनने में आया है कि बिजली पर मजीद टैक्सेस लगेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोग शदीद मुश्किलात में हैं। हमें गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए रास्ते निकालने हैं। जिनकी तनख्वाह 30,000 नहीं, उनको 30,000 बिल आ रहा है। लोग कहाँ से अदायगी करेंगे? किस्तों में बिल लेना भी जुल्म होगा। हुकूमत आवाम के लिए रास्ते निकाले। शेरी रहमान का कहना है कि टैक्स ना देने वालों पर बराह रास्त टैक्स के जरिए बोझ डालें, अशराफिया पर ज़्यादा, गरीबों पर कम बोझ डालें। इसके साथ साथ मुआशी तज्जियाकारों का ये कहना है कि किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए। जो बिजली मुफ्त दी जा रही है उस पर शराइत लगनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को भी कुर्बानी देनी चाहिए ताकि अवाम के दुखों में साथ होने का पैगाम दिया जाए। मुआशी तज्जियाकार फर्रुख सलीम ने कहा कि मुफ्त बिजली का सिलसिला ज़रूर बंद करें, लेकिन बिजली की तरसील के नुकसानात भी कम करें जो 500 अरब रुपए से ऊपर चले गए हैं। इस वक्त बिजली के बिल्स में 30% टैक्सेस और 50% हुकूमती नाअहली है, ये भी उन्होंने कहा। फिर माशी तज्जियाकार खुरम शहजाद ने कहा कि अवाम को सस्ती बिजली नहीं मिल रही तो अच्छे पैगाम के लिए सरकारी मुलाजमीन भी मुफ्त बिजली ना लें। माशी तज्जियाकारों ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी और सूबों की मुंतकिली को इस मसले का हल करार दिया। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हों या जो भी हों, चाहे वो हाईएस्ट लेवल पे हों और लोवेस्ट से लोवेस्ट लेवल्स पे हों, अगर वो अपनी बेनिफिट्स को फोरगो करेंगे तो ये एक मैसेज जरूर होगा। इससे आवाम की तकलीफ में बहुत ज्यादा कमी तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक आवाम को ये हौसला होगा कि अगर हमें नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं एटलीस्ट वो भी अपना जो है वो बेनिफिट फोरगो करें। तो मेरे ख्याल में एक मैसेज जरूर होना चाहिए। तो शोरोगुल भी हम करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, सोल्यूशंस की तरफ हमें जाना है। उसमें एक सोल्यूशन ये है जो कि डेफिनेटली टेम्पररी सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्राइवेटाइजेशन में है, प्रोविंशलाइजेशन में है और डिसेंट्रलाइजेशन में, डीरेगुलेशन में। गवर्नमेंट अपने चुगल से निकाले पावर सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करे। बिल्कुल किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए। वो 13 अरब की जो बिजली मुफ्त दी जा रही है उसके ऊपर शराइत लगनी चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर 520 अरब का नुकसान है और सिर्फ 13 अरब की जो मुफ्त बिजली है उसको बंद कर दिया जाएगा तो उससे आपके और मेरे बिल के ऊपर कोई असर आने वाला नहीं। तो पहला फोकस जो है वो चोरी कम करने में, वो 520 अरब रुपए के खसारे को कम करने पे होना चाहिए और दूसरा फोकस वो जो 13 अरब की मुफ्त की बिजली दी जा रही है उसको वापस किस तरह लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को अदालत से बाहर आते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में मजीद जाने के नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, आखिर वजह क्या है? हलीम आदिल शेख को अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, ये क्या केस है अब? जी देखिए, बिल्कुल ही गुज़िश्ता रोज हलीम आदिल शेख जब हाई कोर्ट पहुंचे थे तो वहां पे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज था। ताहम गिरफ्तारी के दौरान जो पुलिस ने एक और फिर मुकदमा कल दर्ज किया जो कि पीडी थाने में दर्ज हुआ था, मुकदमा नंबर 594/2023। इसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जिस वक्त फिरोजाबाद थाने के पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आई थी तब उस दौरान हलीम आदिल शेख और उनके साथ जाफर भुट्टो, फहद और फिदा ने पुलिस के साथ रिटेलिएशन की, डंडे और पत्थर बरसाए, जिसकी वजह से जो है कुछ पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। जिसके बाद में हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्य सरकार ने मुदाखलत, बलवा, पुलिस एहलकार को तशद्दुद करने की बात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़ीशान शाह। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जाम बहक हो गई। अहले खाना के मुताबिक बच्ची गली में खेलते हुए गटर में गिरी। मजीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा किरण खान। जी, इस वक्त मैं मवाज कोट के उस एरिया में मौजूद हूँ जहाँ से अब से कुछ देर कबल एक बच्ची इस गटर में जो है वो खेलते हुए गिरी है।
है और उसके बाद वो जाँ बहक हो गई। यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आप के जरिए उस बच्ची को जो है वो निकाला है। अगर इस ओवरऑल इलाके की मैं आपको सूरत हाल बताऊं, इंतहाई खराब सूरत हाल है। एक भी गटर मुझे यहाँ पर नजर नहीं आया जिस पे ढक्कन लगा हुआ हो। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो लाइन से जो है यहाँ पर गटर जो है वो खुले हुए हैं और किसी भी एक गटर पर ढक्कन जो है वो नजर नहीं आ रहा। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, किसी भी किस्म की कोई सहूलत भी नजर नहीं आ रही। और जो इस इलाके की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, सड़कें ना होने के बराबर हैं। हम भी यहाँ पर मुश्किल से ही पहुँचे हैं और ये आप देखें, ये वो गली है जहाँ पर बच्ची रहती है और इस गली के भी गटर जो हैं वो खुले हुए हैं। तो सूरत हाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि वो भी मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके हैं क्योंकि बच्चे अपने घरों से बाहर आके खेलते हैं। सूरत हाल यहाँ पर सड़कों की भी ख़राब है और सड़कों पे जितने भी गटर हैं, एक तो यहाँ पर गटर बहुत ज़्यादा हैं और जितने भी गटर हैं वो सारे खुले हुए हैं, जिसकी वजह से कोई भी नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हो सकता है। जो आज इस इलाके में हुआ कि एक 4 साला बच्ची उमरा बलोच जो है वो खेलते हुए इस गटर में जाके गिरी है, जिसके बाद जो है वो जाँ बहक हो गई। आपको बताएं कि रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में मैनहोल में गिरकर बहन भाई जाम बहक हो गए और उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, ये भी बताया जा रहा है। दूसरी जानिब मैनहोल में गिरकर जाम बहक बच्चों पर को स्ट्रेचर ना देने पर तहसील लियाकतपुर हेडक्वार्टर अस्पताल के अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ शम्स कॉलोनी में 8 साला बच्चा रेहान पतंग के पीछे मैनहोल में गिर गया था, जिसको बचाने के लिए उसकी 10 साला बहन मुकद्दस भी मैनहोल में गिर गई थी। दोनों बच्चों को मैनहोल से निकालकर तहसील लियाकतपुर हेडक्वार्टर अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो दम तोड़ चुके थे, जहां से एम्बुलेंस में मुंतकिल करने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिल सका और अमले ने हाथों में उठाकर एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। स्ट्रेचर ना देने के वाक़े का नोटिस लेते हुए MSTHQ अस्पताल ने नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर मामूर एहलकार को मुअत्तल कर दिया। अहले इलाक़े के मुताबिक इलाके में बुनियादी सहूलत देने की कई बार दरख्वास्त दी थी मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया ने नहीं सुनी, जिस पर अस खुद मैनहोल बना लिए।